Gurutam. Okay, guys, so all of you can hear me properly? Yes, sir. Amishi, can you hear me? Amishi, can you hear me? Yes, sir. Okay, so welcome to our session here. So today we will go for the mathematics, right? So in our last class, we have already learned what is degree of polynomial, what are the names of the polynomial, like how we can distinguish it, right? So we have already discussed what is linear, what is quadratic, what is cubic and all, right? So any one of you can tell me what is the degree for linear equation? One. Okay, so linear equation में degree जो हो जाता है 1 होता है. Okay, that's great. Okay, and for quadratic, Amishi, what is for quadratic? 2. So quadratic में degree हो जाएगा 2. That's great. Okay, and for cubic, Nitish, cubic में कितना हो जाएगा? 3. Okay. Biquadratic में Sonal? 4. 4. Okay, fine. Okay, ठीक है. So all of you can hear. So let's proceed. So in our last session, I have also taught you that we have quadratic expression, general equation. We have ax square plus bx plus c. This is our quadratic expression I told you. And I have also told you that alpha, suppose let alpha and beta are zeros, alpha and beta are zeros, so sum of zeros will be what? Alpha plus beta is equals to minus b by a. And Amishi, what about the product of zeros? So L into B. Alpha into b, not L. This is called alpha, right? And this is called beta. B for beta. जो नहीं जान रहे हैं, please make a note. I will write down again here. This symbol is known as alpha. Okay, this symbol is known as beta. This symbol is known as gamma. Okay, and this symbol is known as delta. So if I have to take 2 zeros, I will take alpha beta. If somebody says cubic है तो उसमें हम alpha beta gamma लेंगे. Biquadratic है तो alpha beta gamma delta लेंगे, right? Is it clear, Amishi? Yes. Okay. So I'm rubbing. Please note कर लीजिए फटाफट fast. So alpha beta product of zeros जो है वो किसके बराबर होगा सोनल? C upon A. आपका आज इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. Okay, no problem. Please mute yourself, guys. Okay, fine. So हम लोगों ने यहाँ तक किया था, right? और इसके बेसिस पे I think we have done 1 or 2 problems. So आज हम इस पर थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे. So one by one we will see how the problems are, right? Okay, so let's move on. So I'm just moving. So I'm taking one problem and I will discuss with you guys. So I'm going to take it one problem here. Taking the problem. Okay, this problem is good. Okay, guys, can you see the problem? Yes, sir. Okay. Please mute yourself, Nitish, and okay. Amishi, can you read the problem, please? Yes, sir. Obtain the zero of the quadratic polynomial root under 3x square minus 8x
plus 4 root 3 and verify the relation between its zeros and coefficients. Okay, so in this question, we can see here, the question says that find the zeros. First, what they're saying, find the zeros. So please mute yourself, guys. Don't unmute. Okay. So here what will happen, find the zeros. So it means it's a quadratic. So how many zeros we will get it here, Amishi? So 2 zeros. गुड सोनल, आज आपका इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो आप जब जरूरत हो तभी ओपन करें, बिकॉज बहुत नॉइज क्रिएट कर रहा है. ओके, Yes. या ओके. So we will get it here. How many? We will get it here 2 zeros. So we will suppose that we have to find the 2 zeros. So how we can solve for the first one? Simply suppose that this expression is what? This expression is fx. This expression is what? Fx. So we can put it equals to 0 for finding the zeros, right? So let's solve. So we can write it down here. I will use my black pen here. So we can write down here root 3x square minus 8x plus 4 root 3 equals to 0. क्योंकि यहाँ 0 कह रहा है कि obtain the zeros. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एक्सप्रेशन है उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे. So that's why I did here. Is that okay, Amishi? Yes, sir. अच्छा, अब कौन इसको सॉल्व करके मुझे बताएगा कि x की वैल्यू क्या होगी? What is the value for the x here? And we know very well we will get the two values. So who will tell me this answer fast? You have 1 minute. Tell me the values for the x. Yeah, guys, done? Okay, Sonal done. Okay, Sonal, tell me what is the answer for the x here? You can take, yeah, tell me again. 1 एक No. सेकंड. 1 भी नहीं है. Okay, I will solve. Don't worry. I will solve here. Guys, Amishi, do you know how to solve this kind of problems? No, sir. Okay, no problem. I will let you know how to do. We can go for splitting the middle term. What we can go? We can go for splitting the middle term. So you can see, I told you for splitting the middle term, this, the coefficient of x square, and this number, I will write it down here, the rough part, rough. So हम क्या करते हैं? हम ये वाला पार्ट और ये नंबर को पहले मल्टीप्लाई सर 2/√3 सर 2/√3. आंसर दूसरा नंबर 2√3 सर. Good, perfect. Okay. √3. Okay. I will solve here, guys. Don't worry. Mute yourself. Okay. So Amishi, आप यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनेगा. तो हमने इसको क्या लिखा है? 3 times 4 times √3. ये कितना देगा आंसर? It will give me how much? 12. It will give me 12. Perfect. So we will do 12 का factorize करते हैं. So ये हमें देगा 2 and 6, right? So can I do here? हमें क्या करना होता है यहाँ पे? आपने शायद फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा 9th में कि यहाँ पर दो वैल्यूज बनानी पड़ती है. क्या बनानी पड़ती हैं? दो वैल्यूज. तो दो वैल्यूज मिल गए हमको. तो एक वैल्यूज हो गया 6 और दूसरा हो गया 2. अब देखो यहाँ पे आपको -8 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी माइनस पुटअप कर दो, यहाँ भी माइनस पुटअप कर दो और दोनों को ऐड करो. तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये -8 देगा हमें. मिडिल वाला सेटिस्फाई कर गया. अच्छा, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कराना के लिए अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए. अगर ये दोनों ही कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं. इज दैट क्लियर विद यू? Yes, sir.
तो अब हम -8 की जगह पे क्या लिखेंगे? लुक हियर, वी कैन राइट √3x², और -8 की जगह पे हम लिखेंगे -6x - 2x। देखिए भाई, मैंने -8 को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। कैन यू सी दैट? प्लस Yes, sir. 4√3 इक्वल्स टू 0। सो अब यहाँ पे पहले दो में क्या कॉमन आएगा? व्हाट विल बी द कॉमन? √3x. So now, okay, wait. Okay. Okay, so यहाँ पे √3x कॉमन आ जाएगा। √3x कॉमन। What is left here? x minus, यहाँ पर कितना बच जाएगा अमीशी? So 2x. Only 2x. So अगर मैं 6 को 2 लिखूं, आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर ऑन द टॉप, यहाँ टॉप में देखिए लेफ्ट हैंड साइड, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 times 2, Yes, और sir. 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 times √3 times 2। क्या हम लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. तो √3 एक तो कॉमन हो गया, बच क्या गया? 2√3। सो वी विल राइट डाउन हियर 2√3। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay, now next part में हम कॉमन लेंगे क्या? -2। So what is left? X minus 2√3 is left, right? तो ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट इज कमिंग सेम, ब्रैकेट में सेम आ रहा है, right? Yes, तो sir. ब्रैकेट में सेम आ रहा है, दैट मीन्स हमने सही किया है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। तो हम ब्रैकेट वाला यहाँ लिख देंगे, एंड देन वी विल राइट इट डाउन हियर, √3x - 2 equals to 0. Correct? Okay, so guys, after that what we will do here, we will equate this with the 0, and then we will equate this with the 0. So I'm going in the next page, so we can write down further x, x minus 2√3 equals to 0. Okay, and another part, what was another part? √3x - 2. So I will write down here √3x - 2 equals to 0. तो यहां से क्या आ गया? यहां से हमें 2√3 मिल जाएगा, राइट? और यहां से हमको मिल जाएगा √3x is equals to 2. So x will be 2 upon √3. Is that clear, Amishi, now how to solve this kind of problems? Yes, sir. So please guys, आप लोग इसको जल्दी से अमीशी आप इस पार्ट को नोट कर लो फटाफट। Noted, guys? Yes, sir. Okay, this page also you can note down. So you need to suppose, guys, this is what, this one you can consider as alpha and this one you can consider as beta, right? So पहला पार्ट हमारा डन हो गया, सेकंड पार्ट हमें कहता है वेरीफाई। तो वेरीफाई में अल्फा की वैल्यू हम ले लेंगे 2√3 एंड बीटा की वैल्यू हम ले लेंगे 2 upon √3, correct? So according to the problem, sum of zeros, कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा must be equals to -b/a, right? So जरा चेक कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया। So अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं तो ये 2√3 है प्लस 2 upon √3 है। तो इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम हो जाएगा। So it will become here 2 times √3 times √3 plus 2. So ऊपर ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 upon √3. Is it -b/a भी कितना आ रहा है? जस्ट चेक कर लेते हैं। माइनस और b की वैल्यू जो है that will be what? That will be 8 and a की वैल्यू जो है √3. So यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या था। ये b की वैल्यू माइनस ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे हमने माइनस इंसर्ट कर दिया। सो इट्स आल्सो गिविंग मी 8/√3। तो हमारा ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अमीशी, इज इट डन? Yes, sir. ओके, ये पार्ट क्लियर है, आपको समझ में आया?
Yes, sir. प्लीज नोट कर लीजिए. ओके गाइस, सेकंड पार्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल लीजिए या जीरोस बोल लीजिए, बात बराबर है. तो हम अल्फा बीटा, so alpha beta must be equals to c by a, right? So let's check out that alpha times beta comes how much. So alpha की वैल्यू थी 2√3 और बीटा की वैल्यू 2/√3. So both are cancel. Oh sorry, I need to cancel this part. This cancel, so it's coming 4. So let's work out c by a कितना आता है. So c की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में 4√3 है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे c की वैल्यू जो है वो आ गया हमारा 4√3 और a की वैल्यू ऑलरेडी √3 है. So it's cancelled, so it's coming 4. So now this and this is same, so hence verified. Do you understand guys? Yes, sir. Okay, fine. Okay. नीतीश आपको क्लियर हो गया कैसे वेरीफाई करेंगे? यस सर. ओके. आदित्य, आदित्य, कैन यू हियर मी? Okay, is it done? Shall we proceed? Yes, sir. Okay, fine. I'm going to take another problem here, guys. So just give me a second. Okay, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि if zeros are given, so how to write down the equations? Do you remember that? Can you see the problem here, guys? So in this problem, you can see here what is happening. They are asking find a quadratic polynomial. The sum and the product of zeros are given. That means we have what? We have alpha plus beta. That's given me as -5. And we have alpha times beta. That is equals to 6. So Amishi, do you remember I have given you the general equation? Yes, sir. So can you tell me what was the general equation? X square minus alpha plus beta times x plus alpha beta. This was the equation I have given you last session, right? Yes, sir. So हम क्या करेंगे, हम simply यहाँ पे x square minus alpha plus beta की वैल्यू ऑलरेडी -5 है, तो हम यहाँ -5 इंसर्ट कर देंगे और alpha beta 6 दे रखा है. So the equation will become how much? The equation will become expression will become here x square plus 5x plus 6. Is that clear now? Please make a note, guys. नीतीश आपको क्लियर हुआ ये वाला? नीतीश क्लियर है आपको? सर. ओके. आदित्य आपको क्लियर है? आदित्य अनम्यूट करके बोलिए. Okay, we shall proceed. Okay, Amishi, proceed करें हम? Yes, sir. Okay. So giving you another problem and let's see how you can guys solve this part. Just a moment.
मैं अपलोड कर रहा हूं। ओके गाइस, ओके, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए, एक बार ट्राई कीजिए। मैं बता दे रहा हूं प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। They are saying that 1 0 of polynomial of this expression is reciprocal of other। मतलब इस एक्सप्रेशन का हमें कितने जीरोस मिलेंगे? 2 जीरोस मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, राइट? सो लेट 1 0 is alpha, so another 0 will become how much? Anybody can tell me? Beta, sir. तो इसमें ऑलरेडी बोल रखा है ना कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो एक अगर अल्फा लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा की 1 जगह by पे alpha. यस 1 बाय Alpha. अल्फा हो जाएगा। अमीशी, डू यू क्लियर नाउ? अमीशी, Yes. एक अगर हमारा अल्फा है और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है कि इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, reciprocal of other, so if one is alpha, so another will become here 1 by alpha, right? Yes, sir. Okay, so guys, आप exactly same वैसे ही करो। अब आपको करना क्या है इसमें कि आप एक काम करो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो अगर हम यहाँ पे लिखें सम ऑफ जीरोस, क्या लिखें हम? सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस में एक अल्फा है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा, इट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस बी Minus- बाई ए। Yes, So sir. what is the value of b? Value of b is 13. 13. So I can write minus 13 upon a square plus 9. Any problem, Amishi? Because sir. the coefficient of x square is how much? The coefficient of x square is a square plus 9। अब यहां पर देखिए, यहां पर आने के बाद जी हम फिर फंस गए कि a भी वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल, राइट? Yes, sir. तो हम तो यार फिर फंस गए, दिक्कत हो जाएगी अब तो हमें, करेक्ट? Yes, sir. ओके, तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करेंगे। क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स 1 बाय अल्फा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c अपॉन a, राइट? सो व्हाट Yes, इज द sir. वैल्यू ऑफ कांस्टेंट? द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 6a, and what is the value of coefficient of x square? So coefficient of x square is a square plus 9, so a square plus 9। अब देखिए ये कैंसिल हो गया जी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 1 is equals to 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 बच जाएगा। Yes, sir. अब हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बच जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a। अमीशी, यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay, so now further for solving, what we can do here, we can take this to this side, so it will become here a square minus 6a plus 9 is equals to 0. So is it coming a quadratic equation now? Sonal, is it a quadratic equation? Yes, sir. Okay, so guys, now I think now you can solve this quadratic. Sir. Please solve this quadratic. Sir, Okay, no issue, mute कर लीजिए guys. So please solve and tell me the value of a. Sir, Yes, tell me what is the answer? दोनों का 3 आया सर। हाँ, इसमें 3 है। So value, अमीशी आपसे सॉल्व हुआ ये वाला पार्ट अभी? Yes, sir. आपको कितना आया? So minus 3 plus 3 minus 9, so 3 I do 3. हाँ, 3 आएगा, right? Yes. हाँ, बोलिए। 3 Okay, so 3 will be the answer. So here, let me check out. Okay, yes, right guys. So the correct answer is 3 here.
ओके, मैं सॉल्व करके बता भी देता हूं, जिनसे नहीं हुआ वो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे. आई विल राइट इट डाउन हियर. सो वी हैव ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि रफ में आप देखो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 1 और ये 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 टाइम्स 9 इज इक्वल्स टू 9. सो अब आप देखो 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 3 और 3 मिल जाता है. तो अगर मैं ये -3 और -3 दोनों ऐड कर दूं तो -6 मिल जाएगा. और तो हमारा मिडिल टर्म हमारा सेटिस्फाई हो गया. एंड -3 टाइम्स -3 हम कर दें तो ये हमें +9 देता है. तो हमारा ये वाला पार्ट भी सेटिस्फाई हो गया. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर -3a plus 9 is equals to 0. So further we can write a minus 3 a minus 3 equals to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा, a minus 3 और फिर यहाँ से a minus 3 equals to 0. So आप देखो a minus 3 equals to 0 कर दिया तो a is equals to 3 for both the cases, right? Amishi, is that clear now? Yes, sir. Okay guys, fine, well done. Okay, so let's move out. तो हमने जी ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी. अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है. ओके, गिविंग यू गाइस, जस्ट होल्ड अ मोमेंट. ये क्यों नहीं हट रहा मेरे फाइल से? ओके, हट गया अभी. ओके, just hold a second. Because these problems are important problems, we need to discuss. और जो भी है म्यूट कर लीजिए खुद को. Okay, giving you this one and let's work out with this. Okay guys, अब ये क्वेश्चन टाइम लीजिए, कौन बना के मुझे बताएगा? You have to, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. They are saying that alpha beta are the zeros of this expression, right? They are saying that what would be the value of alpha square plus beta square. पहला क्वेश्चन ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन हो गया 1 upon alpha plus 1 upon beta की वैल्यू क्या होगी. So take your time, solve it and then tell me. क्वेश्चन नोटेड हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया था ना? Yes, sir. ओके, तो थोड़ा सॉल्व कीजिए. मैं यहाँ थोड़ा सा पेजेस इंक्रीज कर लेता हूँ. Okay, where are we? Yes, we are here. Okay, yeah, go ahead guys, do it fast. So Sonal, Nitish, Aditya. Okay guys, done. किसका आंसर आ गया? किसी का नहीं आया? आदित्य नो सर. नहीं आया? अच्छा, ओके. नीतीश, आपका आंसर?
नीतीश आपका आंसर आया? No, sir. नहीं आया. Okay. Okay, Amishi, what about you? No, sir. Okay, सारे धुरंधर यहाँ पस्त हो गए हैं. अच्छा, ठीक है. सोनल, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है. Okay, wait. I will tell. Don't worry. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. Mute, please, guys. Mute yourself. Okay. So let's see here how we can solve this problem. So in this problem, you can see they have told the equation, right, guys? And they have told that the alpha and the beta are the zeros. So from here, if I say that alpha plus beta, so alpha plus beta क्या हो जाएगा? According to the question, minus b by a. So minus b की value मतलब minus p दे रखा है यहाँ पे. तो minus p upon 1. So it will become p. So alpha plus beta क्या आ गया मेरे पास? p. Right? दूसरा, अल्फा टाइम्स बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा? अमीशी बताइए. अमीशी, तो सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम इस क्वेश्चन में? Q. यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? अमीशी, आपको प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, अब हमें निकालना क्या था? वी हैव टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अमीशी, आप मुझे बता सकते हो क्या कि अगर अल्फा प्लस बीटा का हम स्क्वायर कर दें, ये हमको निकालना है, राइट? तो हम सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं. अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दें तो हम इसको पी का स्क्वायर लिख सकते हैं. Yes, sir. सो नाउ यू टेल मी, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. Good. So 2 alpha beta, that will be equals to p square. Yes, sir. Now we have to find this. So I will leave as it is. And 2, what is the value of alpha beta? We got it. We got it the q, right? So I will write down here q is equals to p square. So alpha square plus beta square. और ये किधर चला जाएगा? ये राइट हैंड साइड चला जाएगा हमारा. Yes, p sir. square minus 2q. This is the solution for the first answer. Please note down, guys. समझ में आया कैसे बनाएंगे हम इसको? Yes, sir. और सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे घर में. ये नहीं कि बस यहाँ पढ़ लिया हो गया. टेस्ट भी होगा. रिजल्ट नहीं आएगा फिर समझिएगा. Noted, guys? Yes, sir. Okay, guys. So we will proceed for the second part. If you see the second part, I'm going for second. Question says 1 by alpha plus 1 by beta. हमें अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग तो पता नहीं है जो हम पुट अप कर लेंगे यहाँ पे. तो No, क्या sir. हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें? हम इसको एलसीएम ले लें. तो एलसीएम जब लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा. और ऊपर में क्या आ जाएगा? ऊपर में बीटा प्लस अल्फा आएगा. तो बीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स बीटा. अमीशी, कैन वी राइट लाइक दिस? T by Q, sir. So now what is the value of alpha plus beta? Value of alpha plus beta is sum of the zeros. So we can write it down here P. And what is the product? Product, we got it here as Q. So we can write down Q. So this is the value of second part. Please make a note, guys. Amishi, do you clear now? Yes, sir. Nitish, Yes, Aditya, sir. clear? Aditya, are you clear for this problem? Yes, sir. Okay. So note down हो गया. आगे proceed करें हम. Sir. Yes, sir. Okay, guys. So I'm moving forward. Just give me a moment.
Oh yes, we got very good problem here. Just hold a moment, guys. आज हम लोग क्वाड्रेटिक का पार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट सेशन हम लोग क्यूबिंग का भी पार्ट करेंगे. हो सकता है आज भी हम शुरू कर सकें. But first of all, we will finish this part. Okay, I am going to upload the other problem here. So this is the another problem. जैसा स्टेप मैंने बोला था सब लोग उस तरह से फॉलो करेंगे. Is that clear, guys? अच्छा, प्रॉब्लम यहां आती है आप लोगों को कि ये जो फॉर्मूला है a पावर 4 b प्लस b पावर 4, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, राइट? प्रॉब्लम यही आती है ना अमिशी? Yes, sir. नीतीश, प्रॉब्लम यही आती है ना आप लोगों को? नीतीश, प्रॉब्लम कहाँ आती है? फॉर्मूला नहीं मालूम होता, यही बात है, राइट? Yes, sir. आदित्य, आपका भी यही प्रॉब्लम है कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, चलिए देखिए कैसे हम करते हैं. जब फॉर्मूला नहीं पता होता है तो हम कैसे करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे. ठीक है, ओके. सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल का 0 है. तो हम यहां से अगर हम नोट डाउन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ द जीरोस इज हाउ मच? Amishi, can you tell me what will be the sum of the zeros here? So, माइनस b बाई ए, सिंपल है, वही क्वेश्चन है ना. और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? c बाई ए. Yep. Yes, sir. ओके, नाउ हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर दिस? हमको तो अल्फा प्लस बीटा पता है जी, और अल्फा बीटा पता है. हम अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 कैसे करेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम फॉर अस, राइट? So guys, for this what I will do, I will let you know one thing. Okay, मैं इस पेज पे वापस आऊंगा. Just give me a moment. अब देखिए, मैं कुछ चीज लिखने जा रहा हूं, आप सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे. हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है a पावर 4 प्लस b पावर 4 का फॉर्मूला. ठीक है, ये निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं है. लेट्स वर्क आउट विद मी. आई नो a प्लस b का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाता है अमीशी? टेल मी. A square plus B square into plus 2AB. राइट? अच्छा, अगर हम यहां से ये निकाल लें तो ये कितना हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, that is equals to how much? That is equals to a square plus b square. Can I write like this? Yes, sir. Okay. अब देखिए, पहुंचना था जी यहां पर. पहुंचना कहां था? यहां पर, राइट? ओके. अब दूसरा चीज देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर फिर से कर दूं, इस पार्ट को, लुक हियर, आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम गोइंग टू डू द स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट. So what shall I write it down here? A square का whole square, right? Plus what shall I write? B square whole square. B square का whole square. अच्छा नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो हम आगे आप इसमें फंस जाओगे. मैं एक चीज और इसमें बता देता हूँ. अगर आप इसका कंप्लीट होल स्क्वायरिंग इसको अगर कर लो, एक सेकेंड, मैं अगर आप इसको यहाँ से आगे जाते हो तो आप फिर से ठीक है, ओके फाइन, आई एम गोइंग टू गो फॉर इट. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट? करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, ठीक है जी. तो अब आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. मुझे यहाँ ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया. इसको बगल में लिखता हूँ, ज्यादा बेटर होगा.
एक सेकेंड गाइस, सॉरी, ओके, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं इसको उठाकर इधर लेके चला जाता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, a पावर 4 प्लस b पावर 4। आई एम गेटिंग दैट राइट? Yes, sir. नाउ अब देखिए, अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। सोनल म्यूट कर लीजिए। ओके, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी हमारा स्क्वायर माइनस 2ab इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे पूरा होल स्क्वायर है, तो ये लिख दिया माइनस 2a, इसको हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। अमीशी, कैन आई राइट लाइक दिस? Yes, sir. तो अब हम इसको a पावर 4 प्लस b पावर 4 हमने, अब ये देखिए, अब अगर मैं इस फॉर्मूला में लिखूं यहाँ पर ऊपर फाइनली, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कंप्लीट स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पर होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का वैल्यू पता है, ab भी पता है और ab भी पता है। ये नोट कर लीजिए जरा ऊपर से कि फॉर्मूला में क्या निकला हमारा। हमने क्यों इतना फॉर्मूला किया, क्योंकि हमको सम पता है, प्रोडक्ट पता है। तो हम देखिए पूरे फॉर्मूला को हमने क्या किया है, पूरे के पूरे फॉर्मूला को सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. ओके अमीशी, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब देखिए मैं वापस पीछे चलता हूं, तो मैं यहां लिख दूंगा, मेरा फॉर्मूला आ गया जी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसका फॉर्मूला हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर। यही है ना इसका फॉर्मूला, राइट? So now let's work out. So alpha plus beta is how much? Minus b by a. So substitute the value. Minus b by a का whole square minus 2 alpha beta कितना है, तो c by a. So c by a bracket close कर देते हैं, whole square minus 2 times c by a का whole square. Right guys? So Yes, अगर मैं sir. इसको solve करूं तो ये बन जाएगा b square upon a square माइनस 2c बाय a का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर। ओके गाइस, सो हम अगर फॉरवर्ड आगे लिखें फिर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर आता है, ओह सॉरी, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, Yes, sir. राइट? So I will do that part. Give me a moment. So I will go for here b square. I will take it here a square as LCM. So b square minus 2ca का whole square और फिर बच गया हमारे पास 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगर इसको हम जरा सा ओपन भी कर लें तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac, राइट, का होल स्क्वायर अपॉन a पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अगर फर्दर थोड़ा सा और रिजॉल्व करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं आप, ये कितना हो जाएगा, b पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4abc अपॉन a पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आप यहीं पे छोड़ भी सकते हो, आगे प्रोसीड करना है तो आप आगे प्रोसीड भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड अमीशी? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम यहां तक पहुंचने में? No, sir. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो,
इस पॉइंट पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। सर यस बताइए। सर 4ab² होगा ना सर? कहाँ? यहाँ सर -4ab²। हाँ 4ab²c, सॉरी, यस करेक्ट। हाँ ab², 4ab²c। डन गाइस? यस सर। अमिशी डन? Yes, sir. ओके, सोनल डन? नीतीश डन? यस सर। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके हमको अब सेकंड पार्ट करना है। क्या पार्ट करना है? सेकंड पार्ट, दिस पार्ट, राइट गाइस? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं अभी नेक्स्ट पेज में बताता हूं। सो वी हैव द प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम क्या था? α² अपॉन β²। ओके, we had the problem α² upon β² plus β² upon α²। तो अगर आप इसको देखो तो आप इसको लिख सकते हो α² टाइम्स β², और ऊपर में क्या लिख सकते हैं हम? α⁴ हो जाएगा ये, और ये भी β⁴ हो जाएगा। अमिशी आपको समझ आया कैसे मैंने किया? मैंने एलसीएम ले लिया, राइट? Yes, sir. तो आपको मालूम हुआ कि एलसीएम जब लेते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ भी α² अपॉन α² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए नीचे में हो गया ये, और ऊपर में α² टाइम्स α² कितना हो जाएगा? α⁴। और यहाँ पर भी हमको β² अपॉन β² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या हो गया? β⁴। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. अच्छा, अभी हमने जस्ट अभी निकाला है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम लिख देते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी वैल्यू हमें आई थी b², मैं ऊपर वाला ही यूज कर लेता हूं, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, गिव मी सेकंड, माइनस 2c² अपॉन a², गिव मी सेकंड, 2c² अपॉन a², और यहाँ पर a⁴ था। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर की वैल्यू। अब अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा हमको मिला हुआ था c/a, राइट? तो हम यहाँ लिख सकते हैं c/a का होल स्क्वायर, करेक्ट? लिख सकते हैं हमेशा? नहीं, अल्फा बीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा और हम इसको फर्दर रिजॉल्व कर लें तो इसको हम लिख देंगे b² 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम, ऊपर वाले में एलसीएम हम ले लेते हैं a⁴, तो ये हो जाएगा a² c², राइट? नीचे Yes, पावर 4 हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे वाले को ऊपर में रख दें तो हम इसको लिख सकते हैं a² अपॉन c²। yes sir, yes sir. तो ये a² यहाँ से इसको कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा a²। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका b² माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a² c² अपॉन a² c²। इज दैट क्लियर गाइस? Yes sir. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। समझ में आया कैसे करेंगे हम लोग? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें और इसके पिछले वाले जो पार्ट था उसमें, तो मुझे अभी बताएं। अमिशी आपको कोई डाउट? No, sir. ओके, नीतीश आपको कोई डाउट? No sir. ओके, आदित्य आपको कोई डाउट? No, sir. ओके फाइन। और सोनल आपको कोई डाउट? सोनल आपको कोई? No, sir. ओके फाइन, ओके।
म्यूट कर लीजिए सोनल। ओके गाइस, सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। सो हम आगे बढ़े फिर। Okay, Amishi, shall we proceed now? Noted? Yes, sir. Okay, guys. I'm taking another problem. Please follow me. Just hold second. अच्छा, और अमीशी, मैंने वीडियोस शेयर किए हैं आप लोगों के, अब आप लोगों के वीडियोस अपलोड होने लगे हैं। सो हैव यू सीन? No, sir. ओके, अगर रिवीजन करना हो या जो भी है, आपको मैंने यूट्यूब का चैनल आप लोगों को दे दिया है लिंक। प्लीज आप लोग वहां जाकर और सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजन ये है कि जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन चला जाएगा वहां से, तो मुझे बार बार आप लोग को वीडियोस बतानी नहीं पड़ेगी कि ये आ गया है, ये आ गया है। क्या है बता देता हूं आपको कि जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जैसे आज आपने ये क्लास ली है, तो आफ्टर 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज का हम टाइम लेते हैं, और उसके बाद वीडियो जो होती है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ओके गाइस, सो Okay, sir. आप सभी लोग जाकर, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहां पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके रिवीजन के लिए, मेरे प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं है। आप सब्सक्राइब करोगे उससे मुझे कुछ नहीं मिलना। मेरा बस ये है कि जो आपने क्लासेस यहाँ पे की, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप कैसे देखोगे? आप, क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं, तो आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी हैं, सेम यही वाली, यही है, कोई अलग से नहीं है। सेम जो आप पढ़ रहे हो आपकी ही वीडियोस हैं, आपकी आवाज है, ठीक है। आप वहां जाकर देख सकते हो कि हमने इस सेशन में, इस क्लास में क्या पढ़ा। राइट? इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. यस। और दूसरी चीज कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी हैं, आप उनको यहाँ इनवाइट कर सकते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, और उनको बता सकते हो। इज दैट क्लियर गाइस? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so let's proceed. This question is, they are saying that alpha beta are the zeros of this expression such that alpha, ये एक क्लू दे दिया। क्या दे दिया हमको? एक क्लू दे दिया है कि अल्फा माइनस बीटा जो है 1 है। राइट? नाउ दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं fx is equals to x square minus 5x plus k, तो और अल्फा बीटा इसका जीरोस है, सो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोस इज हाउ मच गाइस? सम ऑफ द जीरोस इज Minus minus b by a. 5 upon 1. I am writing directly, so it becomes how much? It's just 5. Yes, sir. So alpha plus beta is just 5. Okay, now from here, what will be the value of product of the zeros? Amishi, tell me. So Amishi. C, just a minute, sir. C upon A. So what is the value of C here? K. K. So K. K upon 1. So K upon 1 is just K. So alpha times beta is equals to K. अब ये दो चीजें हमें मिल गई, राइट? Yes, हमको sir. निकालना है K की वैल्यू क्या है, और एक एक्सप्रेशन और साथ में दे दिया उन लोगों ने हमें कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1. 1 होता है। ये हमको मालूम हो गया, राइट? अब देखिए अब हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगर आप देखोगे तो हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है, राइट? Yes, sir. जरा इसका आप स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो आप? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा मीशी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 आएगा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा नहीं लगेगा? क्या क्या क्या? हम इसका तो- यूज अभी बताते हैं, अभी इसका यूज बता रहे हैं कि ये कहाँ आएगा। ये आपको ये क्लियर है कि हम ये लिख सकते हैं? यहां तक कोई डाउट इसमें? No, sir. अब बात आती है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा, मतलब कि अल्फा बीटा का वैल्यू अलग से मालूम है क्या हमको? सेपरेटली सेपरेटली अमिशी, Yes, sir. No, sir. सेपरेटली कहाँ पता है नीतीश? सेपरेटली मालूम है क्या हमें? सेपरेट अल्फा नहीं, का sir. वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है? तो बताइए, अगर पता है तो बताइए क्या है।
नहीं है सर। सम है, उसका सम है हमारे पास, क्या है, सम ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ दैट। तो अब हम क्या करेंगे अमीशी एंड ऑल गाइज, हम यहाँ पर इस पार्ट को अपने हिसाब से बदल लेंगे। क्या करेंगे हम, जैसे आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर, मैंने लिखकर, कहाँ गया, यस, देखा था मैंने कैसे अपने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, मैंने किस हिसाब से सम और प्रोडक्ट में अपने इक्वेशन को कन्वर्ट किया था, राइट। सेम वैसे ही यहाँ पे हमें थोड़ी सी चालाकी दिखानी होगी। अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, आप लोगों को पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो मैं क्या इसके बदले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहा हूं, क्या मैं इसके बदले लिख सकता हूं ए प्लस, सॉरी ए नहीं, अल्फा बीटा बोलना है यहाँ, yes, I can write it down here, what, alpha plus beta ka whole square minus 2 alpha beta for this part, and then again it will become here 2 alpha beta, that is equals to 1. Can I write that? Amishi, tell me. Yes, sir. कैसे, मैं वापस से यहाँ बता दे रहा हूँ आप सभी लोगों को गाइज, कि हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा था, राइट। तो हम इसको उठा के इधर लेकर चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब सिंपली सी बात है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको अपने काम की चीज मिल गई यहाँ पे, अमीशी एंड ऑल गाइस, नीतीश, मिल गया काम का चीज। यस सर। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें, तो हम इसको रिजॉल्व कर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर कोई ऊपर में तो स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर आप देखो इसको तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो Yes, वैल्यूज sir. पुट अप कर दीजिए गाइस, अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू है, 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा मिशी, के, राइट। Okay. सो दिस इज इक्वल्स टू 1, ओके। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, मैं कहाँ लिखूं, आई विल राइट डाउन हियर, just give me a second guys. If I write it down here, so I can write down what, I can write down 25 minus 4k is equals to 1. So ये कितना हो जाएगा, अगर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो 24 is equals to 4k, right? So 24 upon 4 is equals to k. So k is equals to 6. Do you understand guys? Yes. Please make a note of it fast guys. सर इक्वेशन मान कर नहीं हो सकता है सर, क्या, इक्वेशन इसको मानेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो उसको भी मानकर मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, कर सकते हैं, लेट्स वर्क आउट। इधर गिवन दिया हुआ है सर, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको और इसको लेकर चलोगे तो अल्फा बीटा आप निकाल लो, एक काम ये कर सकते हो कि अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लो, राइट। यस सर, पुटअप कर देंगे। तो पुटअप, हाँ पुटअप फिर कर सकते हो लास्ट में, ये भी कर सकते हो आप। वैसे ही किए तो आ गया सर 8 8 नहीं 6, हाँ नहीं वो भी कर सकते हैं हम, अगर आप इसका यूज करके, आप इसका और इसका यूज करके आप वैल्यू निकालना चाहो, वैल्यू निकाल लो, वो भी पॉसिबल है। यस सर। Amishi, do you understand what he is saying? Yes, sir. So मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नोट कर लिया यहाँ तक? Yes, sir. तो मैंने ये देखिए, मैथ्स में तो कुछ भी कर सकते हो, मैथ्स ये नहीं कहता कि ये पॉसिबल नहीं है, रूल्स अगर फॉलो होते हैं तो मैथ्स में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। Yes, रूल्स फॉलो होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो जी यही है तो यही प्रोसेस, नहीं, दूसरे प्रोसेस भी हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। यस सर। अमिशी, मैं एक इसको सॉल्व कर देता हूँ दूसरे प्रोसेस से भी, देखिए इन्होंने क्या किया, आई विल रब दिस पार्ट, हमको लेकिन उसमें भी तो लास्ट में हमको यूज करना ही पड़ेगा वो चीज। देखिए इन्होंने क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा हमको 5 था, राइट, अल्फा माइनस बीटा जो था वो 1 था, इन्होंने इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड, तो ऐड किया तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया, सो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 6, सो अल्फा वैल्यू वी गॉट इट हियर 3, राइट, एंड देन we got it here beta,
So we can go for alpha plus beta is equals to 5. So this is coming 3. So beta is, that's 5. So beta we can write it here 2. So we got it alpha beta. So we know very well alpha beta is equals to k. तो आप यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो k is equals to 6. ये भी पॉसिबिलिटीज हैं. Yes, sir. हो गया सॉल्व? अंडरस्टूड गाइस? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, नो Thank प्रॉब्लम. you. वैसे भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज है. चाहो तो जो मर्जी है करो. ओके, नोट हो गया सबका? Yes, sir. ओके गाइस, वी विल मूव फॉर अनदर प्रॉब्लम. और अच्छा, जो प्रॉब्लम्स करा रहा हूं ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं. ऐसा नहीं कि बस कराए जा रहे हैं, और मेहनत होनी चाहिए. और आप लोग के होमवर्क्स नहीं आते हैं, पढ़ते हैं घर पे कि नहीं नीतीश? पढ़ते हैं सर. और आदित्य आपका? एक मिनट, आदित्य को अनम्यूट करना पड़ेगा. आदित्य, आप घर पे पढ़ाई होती है कि नहीं? यस सर, होती है. होती है. अच्छा, ठीक है. ओके, इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करके दिखाइए गाइस आप लोग. बहुत आसान है. यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है. तो मेरा जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिएगा. तो ये इक्वेशन आ जाएगा, उससे आप के निकाल सकोगे आराम से. ओके, आई विल सॉल्व बिकॉज द टाइम इज वेरी लेस. मैं सॉल्व कर देता हूं. Alpha, beta are the zeros of this polynomial. Okay, so from there we can say that alpha plus beta is how much? Alpha plus beta is minus 4 by k, right Amishi? And guys, and from another part we have alpha times beta, that is how much? That is 4 by k. Okay, now they have given one equation that alpha square plus beta square is 24. So let's work out. So we can do what? I will do the whole square of this part. I will do the whole square of this part. So you can see if I am going to do the whole square, so alpha plus beta, alpha square beta square plus 2 times alpha beta, that will be how much? That will be 16 upon k square. Correct? This value is already given with me, that is 24. So I will write it down here, 24 plus 2, and this alpha beta is given me here about 4 by k. So I will write it down here, 4 by k, that is equals to how much? 16 upon k square. So let's solve it. So further it will become here 24k plus 8 by k, that is equals to 16 upon k square, right guys? So if you see, if I cancel out, so इस k से इस एक k को खत्म कर देते हैं, means cancel कर दिया हमने. So what is left with me? 24k plus 8 is equals to 16 upon k. So let's work out. It will do the cross multiplication. So it becomes 24k square plus 8k is equals to 16. So if I go further, so 24k square plus 8k minus 16 equals to 0. So are we getting a quadratic equation now, Amishi? Yes, sir. So if you are getting a quadratic equation, so you can solve it further. So next page में मैं solve कर देता हूँ. So we will go here, we will write it down here, 24k square plus 8k minus 16 equals to 0. अच्छा, इसमें से कुछ हम कॉमन भी तो निकाल सकते हैं ना. तो Yes, कॉमन sir. निकाल देते हैं, तो कॉमन आई थिंक 4 आ जाएगा, राइट? 4 sir. कॉमन ले लेते हैं हम, तो बच जाएगा यहाँ पे 6k स्क्वायर प्लस 2k माइनस, नहीं 4 ही क्यों, 8 कॉमन ले लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा.
8 कॉमन ले लेते हैं हम। सो 8, तो यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा यहाँ पे, ओके, एंड यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 0। सो एक्सप्रेशन हो गया 3k स्क्वायर प्लस ये k -2 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं रफ करूं इसका, तो इसका रफ करने पे मुझे मिल जाएगा 3 टाइम्स -2 दैट इज इक्वल्स टू -6। और 6 का अगर हम करें तो 3 and 2 ले सकते हैं। सो 3 plus -2 that will give me 1. Can you see that, Amishi? How I'm doing? Yes, sir. एंड यहाँ -2, तो ये -6, मतलब ये मिडिल वाला भी सेटिस्फाई हो गया और ये वाला भी पार्ट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। सो 3k इज द कॉमन पार्ट, सो k + 3, और यहाँ पे हम 2 कॉमन, k + 3 नहीं, k + 1, सॉरी गाइस, मैं बोलते बोलते बोल गया कुछ और। k + 1, और यहाँ पर हमारा -2, सो इट विल बिकम k + 1 इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा k + 1, और यहाँ से ये बन जाएगा 3k -2 इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं k + 1 इक्वल्स 0। सो k इज इक्वल्स टू -1, और ये बन गया 3k -2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 2/3। So do you understand, guys, how to solve this problem? Yes, sir. So we are getting two values here, -k and 2/3. Okay, guys? Yes, sir. Okay, fine. ठीक है, तो अभी हमारा टाइम हो रहा है, तो सभी को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. All clear? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे मंडे को। इस संडे को अभी कोई टेस्ट पेपर मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है? सो वी विल स्टार्ट आवर टेस्ट पेपर एंड ऑल फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, राइट? Yes, तो sir. जो भी पढ़ाया है अभी तक, आप सभी कुछ को रिवाइज करेंगे और सभी रिकॉल करेंगे, ठीक है? एंड फॉर अमीशी, फॉर यू, आप मुझे मैसेज कर दीजिए जो भी आज क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके गाइस, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं मंडे को, फाइन? एंड Yeah. जो भी है अपने फ्रेंड सर्कल्स या फिर जो भी पढ़ना चाहते हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, उनको आप बोल सकते हो फ्री क्लासेस के लिए भी कि यहाँ पे आप आके फ्री क्लासेस कुछ दिनों के लिए मिलेंगी, वो आप ले सकते हो, राइट गाइस? Yes, sir. Okay, bye. Take care, guys, all of you. We will meet in the next class. Okay? Stay connected.